Go. Yes, sir. Right. So today we will be studying the topic which is from the subject called marketing management, right? So let's begin with the subject from the start. मार्केटिंग मैनेजमेंट जो लोगों ने बीबीए किया हुआ है या जिन लोगों ने बीकॉम किया हुआ है, दे माइट हैव स्टडीड मार्केटिंग मैनेजमेंट इन सम ऑफ देयर सेमेस्टर्स, राइट? सो मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द मोस्ट पॉपुलर stream of specialization in MBA is marketing management, right? सो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है एमबीए में, एंड मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट यू विल बी फाइंडिंग विद इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट आर देयर इन मार्केटिंग एंड सेल्स, राइट? So marketing management subject basically talks about the core of marketing, right? It consists of the different core concepts of marketing. It is an introductory level subject. It is an introductory level subject in marketing, right? Or ये subjects provide foundation to this subject provides a foundation to the advanced marketing level subject. In fact, this should be called as the introductory level marketing subject or the foundation subject for the field of marketing. Now, in this unit, in this subject, we are having 4 units, as you people have already seen in your first semester. This subject will also be consisting of 4 units. And what are those 4 units? Those 4 units are number one, in the first unit you'll be having the basics of marketing, like what is marketing, what is the scope of marketing, what is the nature and importance of marketing, what is a market, what are the different types of markets, marketplace, right? You will also be seeing about the differences between selling and marketing. We will be also looking at the philosophies of marketing, blah blah blah. And in the second unit, we will be studying about market segmentation, market targeting, market positioning, product differentiation, and rest of the things. In the third unit, we will be studying about product and pricing. What is a product, how a product is developed, new product development, product life cycle, followed by pricing a product, strategies and methods of determining the price of a product. In the fourth unit, we will be looking at place, that is the distribution aspect of a product, how the product is moved from the manufacturer to the consumer. And along with that, we will also be studying the fourth and the last P of marketing, which is promotion. All right, in promotion we will be studying about advertising, sales promotion, public relations, direct selling, I mean direct marketing, personal selling, and rest of the things. Fine. So let me come down to the books in this particular subject. In this subject of marketing management, you will be able to find n number of books. There are plenty of books in this subject, but the book which is supposed to be, or which is known as the marketing, the Bible of marketing, is what is Philip Kotler, right? There are various books of Philip Kotler on marketing management, but you can purchase an Indian perspective of Philip Kotler, which is Philip Kotler, Marketing Management by Philip Kotler, Mithleshwar and Jha. Okay, these are two Indian authors, and one is Philip Kotler. It is strictly in the Indian perspective. All the examples you will find in the Indian perspective. So the publication house in this book is your Pearson publication, Pearson Education. All right. So you can purchase any one of any of the book of your own choice. From my side, the recommended text is Philip Kotler, Indian Perspective by Philip Kotler, Mithleshwar and Jha, and the publication house is your what? Is your Pearson Education. All right. So let us come down to the subject once again, and let's start from the unit 1 once again. All right, because as I have been asked to record the lectures, so I'm starting with the first lecture again, right? So here we go. Now, what is marketing? Let us understand what is marketing, right? What are the basics of marketing, right? Yes, sir. What is marketing? तो जहाँ पे बाय और सेलर जमा होते हैं.
for the purchase of sales, for the purchase and sale of goods and services with motive to earn profit and customer satisfaction. सर मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं, उनका मोटिव होता है गुड्स को परचेज एंड सेल करना। Exactly. और उनका सर मेन मोटिव ये होता है कि मतलब सर ज्यादा प्रॉफिट और कस्टमर को अपने सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। राइट देखिए मार्केट में दो चीजें हैं, ठीक है, देयर आर टू थिंग्स इन मार्केट बेसिकली, वन इज मार्केट एंड वन इज मार्केट प्लेस, ठीक है। तो जो बात आपने कही, यू आर वेरी राइट एट योर प्लेस, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स, मार्केट एंड मार्केट प्लेस। नाउ इफ आई से मार्केट, so market is the set of actual and potential buyers of a product, right? When I say market, I am not referring to a particular place, I am referring to a particular group of people, understand, right? There are two different things, one is market and one is marketplace. What is market? Market is a set of consumers, right? The set of actual and potential buyers of a product. These, what is market? Market is referred to as the set of actual and potential buyers of a product. The set of actual and potential buyers of a product. Who are the actual buyers of your product? Who are actually purchasing your product? And who are the potential buyer of the product? Potential buyer are those buyers who are likely to purchase your product, right? Like you are daily reading Times of India, right? Hindustan Times is conducting some promotional program, ठीक है, उसके लिए you are a potential consumer. Why you are a potential consumer? Because you आप न्यूज़पेपर को कंज्यूम कर रहे हो। अगर वो थोड़ा सा अपना सेल्स एफर्ट करे, थोड़ा प्रमोशन एफर्ट करे, थोड़ा एडवर्टाइजिंग करे, थोड़ा आपको परस्यू करे, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़कर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने लगोगे। फॉर हिम यू आर अ पोटेंशियल कंज्यूमर। जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो उसमें सिर्फ आपने ब्रांड चेंज करना है, ठीक है। तो मार्केट को जब हम कहते हैं, मार्केट को हम कहते हैं, तो वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंज्यूमर्स who may be who are actual either or potential. So when I say market, I mean the set of actual and potential, the set of actual and potential buyers of a product is known as market, right? Now market is an area of potential exchange. ये दूसरा पर्सपेक्टिव है, प्लीज pay attention. Market is an area of potential exchange. First of all, we have understood that market is a set of potential buyers and potential actual and potential buyers, ठीक है। मार्केट एक सेट है एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स का। दूसरे लाइन में कहा जा रहा है मार्केट इज एन एरिया ऑफ पोटेंशियल एक्सचेंज। मार्केट एक ऐसा एरिया है जहां पोटेंशियल एक्सचेंजेस पॉसिबल है। व्हाट इज अ पोटेंशियल एक्सचेंज? व्हाट इज अ पोटेंशियल एक्सचेंज? इफ आई से पोटेंशियल एक्सचेंज, व्हाट इज अ पोटेंशियल एक्सचेंज? क्या चीज है जिसको हम पोटेंशियल एक्सचेंज कहेंगे? एनीबॉडी? आप में से कोई बताएगा पोटेंशियल एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ठीक है। नाउ यहां वर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या है? लाइकली टू बी। यहां वर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या है? उन एक्सचेंजेस, उन गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी कि मार्केट एक ऐसा एरिया है जहां पोटेंशियल एक्सचेंज होने की पूरी पूरी संभावना है। आप गुड्स एंड सर्विसेज लेके अपने घर में बैठे रहोगे, बिक पाएंगे? नहीं बिक पाएंगे। पोटेंशियल एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? फॉर दैट पर्पस यू नीड टू गो टू द मार्केट। ईदर यू गो टू अ फिजिकल मार्केट और यू शुड बी गोइंग टू अ डिजिटल मार्केट, तभी वो गुड्स एंड सर्विसेज आप सेल ऑफ कर पाओगे, ठीक है। यहां पे एक बहुत कॉमन चीज है जो देखने वाली है, ठीक है। जितने भी यहां कस्टमर्स हैं मार्केट में, ठीक है, इनकी कोई ना कोई नीड या वांट है। नीड और वांट को हम आगे, अब जब वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, आई मीन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तब हम नीड, वांट एंड डिजायर की भी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग मार्केट में, मैंने कहा मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल कंज्यूमर्स। एक्चुअल एंड पोटेंशियल कंज्यूमर, ये दोनों कंज्यूमर, जो एक्चुअल कंज्यूमर है या पोटेंशियल कंज्यूमर है, इनकी कोई ना कोई अपनी, दे हैव गॉट सर्टेन नीड और वांट दैट कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू एक्सचेंज।
ये जितने भी लोग एक्चुअली पोटेंशियल कंज्यूमर्स यहाँ मौजूद हैं, इन सब की कोई ना कोई नीड एंड वांट है जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकती है। कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं विच दे कैन परचेज एंड गेट देयर नीड एंड वांट सेटिस्फाइड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको? एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, American Marketing Association, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो है डिफाइन किया है मार्केट को। कैसे डिफाइन किया है? एज एन एग्रीगेट ऑफ डिमांड ऑफ आप। कैसे डिफाइन किया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने? ठीक है, एज द एग्रीगेट ऑफ डिमांड ऑफ पोटेंशियल बायर्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कैसे डिफाइन कर रही है मार्केट को? The aggregate of demand of the potential buyers for a product और सर्विस। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एग्रीगेट डिमांड को मार्केट कहा है किसने? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जिसने कई मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत they are conducting researches in the field of marketing, and they have given several definitions also, like marketing management definition is given by American Marketing Association. ठीक है, तो मार्केट की डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी है, that we have studied right now. Right, now coming down to the third slide. Now what is marketplace? ठीक है, मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जो बात हुई थी, अभी आप में से किसी एक डेफिनेशन बताई थी, व्हाट इज मार्केट प्लेस, आई मीन मार्केट प्लेस की डेफिनेशन बताई थी। मार्केट प्लेस के बारे में क्या कहा गया था? ठीक है, कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर्स एंड सेलर्स गैदर टुगेदर टू हैव डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर्स एंड सेलर्स आमने सामने होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के अलग अलग सौदों को अंजाम देते हैं। ठीक है, मीनिंग है बाय मार्केट प्लेस इज, व्हेन आई से मार्केट प्लेस आई एम रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन। When I say marketplace, I am referring to a particular physical location that exists in the real life, where buyers and sellers come together to have different sales and purchase transactions. चाहे आप अपना ये लोकल मार्केट ले लीजिए, चाहे आप अपना मॉल्स ले लीजिए, इवन आप अपने डिजिटल मार्केट्स ले लीजिए। ठीक है, वो सब मार्केट प्लेस ही कैटेगरी में दे विल बी इंक्लूडेड। राइट, market consists of all potential customers sharing a particular needs or want. ठीक है, मार्केट में कौन कौन लोग होते हैं? मार्केट में you will be able to find all potential consumers, all potential customers. ठीक है, who are sharing a particular need or want. ठीक है, मार्केट में you will be able to have all potential customers who are sharing a particular need and want. या sharing a particular need and want का क्या मतलब है? ठीक है, आप वेजिटेबल मार्केट में गए तो आप वहां कपड़ा खरीदने नहीं गए हो। ठीक है, आप वहां वेजिटेबल ही खरीदने गए हो क्योंकि वो वेजिटेबल मार्केट है। कहने के मतलब वेजिटेबल मार्केट में all those consumers या all those customers who are there in the vegetable market, their sole demand is vegetable. ठीक है, कोई वहां और कोई चीज खरीदने नहीं आया, वो सब वहां वेजिटेबल्स खरीदने आए हैं। तो दे हैव अ कॉमन डिमांड इन द वेजिटेबल मार्केट, एंड व्हाट इज दैट डिमांड? दैट इज वेजिटेबल हु आर विलिंग एंड एबल टू एंगेज इन एक्सचेंज टू सेटिस्फाई दैट नीड और वांट। ठीक है, कहने का मतलब ये है मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां आपको एक पर्टिकुलर नीड के सारे कंज्यूमर्स मिलेंगे जो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए दे हैव कम टू दैट पर्टिकुलर मार्केट एंड दे आर विलिंग टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड दे आर रेडी टू पे फॉर इट। वो अपनी नीड को सेटिस्फाई भी करना चाहते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो पेमेंट करने के लिए भी तैयार है। पेमेंट किस चीज का? पेमेंट उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदने का जिन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की उनको जरूरत है। ठीक है, या जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, अब मार्केट, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वी हैव अंडरस्टूड के साथ व्हाट इज अ मार्केट and we have understood what is a marketplace. Now it is the time to study the different kinds of market, right? हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट क्या होता है, we have studied what is a marketplace. अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या हो सकते हैं, मार्केट कितने टाइप्स के हो सकते हैं. ऑल राइट, सो ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on different basis. We can classify the market into different groups and subgroups on these 8 bases. ठीक है, there can be markets of different types which can be classified on 8 bases. ठीक है, market can be categorized into different categories on these bases. First base, on the basis of area, we can classify the market into different categories on the basis of area. We can classify the market on the basis of time. We can classify the market on the basis of transaction. We can classify the market on the basis of regulation. We can classify the market on the basis of volume of business. We can classify the market on the basis of nature of goods. We can classify the market on the basis of nature of competition. ठीक है, we can classify the market on the basis of demand and supply. So these are the 8 bases on the on what grounds we can classify the market into different categories, right? Now coming down to the first base, on the basis of area, right? On the basis of area we can have 3 kind of markets. ठीक है, local market, national market and इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, देखिए ये तीनों मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ही क्लासिफाई आप कर सकते हैं. लोकल मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वी कैन हैव 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वी कैन कैटेगराइज द मार्केट इनटू 3 कैटेगरीज, राइट? एंड व्हाट आर दोस 3 कैटेगरीज? दोस 3 कैटेगरीज आर लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, अब बात करते हैं लोकल मार्केट की. ठीक है, लोकल मार्केट कौन सा मार्केट हो गया? विच मार्केट विल बी सपोज टू बी द लोकल मार्केट? लोकल मार्केट वो मार्केट हो गया विच इज लोकल फॉर यू. ठीक है, विच इज लोकल फॉर यू, मीनिंग है बाय विच इज इन द लोकल एरिया वेयर यू रिजाइड. ठीक है, आपके शहर में जो मार्केट है, आपके पास जो मार्केट है जहां आपके लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सारा मार्केट आपका लोकल मार्केट आ जाएगा. ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रहते हैं, वहां मार्केट है जहां आपकी जरूरत का पूरा सामान मिलता है, लोकल मेड गुड्स मिलते हैं. ठीक है, उस टाइप का मार्केट यहाँ पे लोकल मार्केट कहलाएगा. ठीक है, जैसे आपके शहर में मान लीजिए सब्जी का मार्केट हो गया, आपका फ्रूट्स का मार्केट हो गया आपका, या और कोई ऐसा मार्केट हो गया जहां लोकल कमोडिटीज मिल रही हैं, लोकल ब्रांड्स मिल रहे हैं, वो आपके लोकल मार्केट के तहत आएगा. नाउ कमिंग डाउन टू दिस, अमीनाबाद में सर जिस तरीके से, हाँ यू कैन से अमीनाबाद तो एग्जैक्टली आपका नेशनल लेवल के मार्केट में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी, लखनऊ के आसपास के शहरों से भी लोग आके दे आर डूइंग परचेजिंग फ्रॉम अमीनाबाद, राइट? तो वो आपका एक तरीके से नेशनल लेवल मार्केट में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अब आ जाते हैं नेशनल लेवल मार्केट की अगर बात करें, तो जैसे इन्होंने अमीनाबाद का एग्जांपल दिया, इट इज सेम लाइक दैट. ठीक है, यू विल बी एबल टू फाइंड बेटर ब्रांड्स एंड मोर नंबर ऑफ ब्रांड्स इन नेशनल मार्केट. ठीक है, आप लेट अस से आप किसी मॉल में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, if you enter into any of the mall you will be able to find lot many showrooms. या मॉल का एग्जांपल अगर हम ना ले, क्योंकि मॉल का थोड़ा सा एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट को समझने में बेटर होगा. अगर इफ यू गो टू लाइक से अमीनाबाद आप जा रहे हो, यू विल बी एबल टू गेट मेनी ऑफ द ब्रांड्स. आपको ऐसी ऐसी कमोडिटीज में मिलेगी जो आपके यूपी में या उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है. यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोज व्हिच आर इवन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आसाम. ठीक है, इस तरह की आपको चीजें
इस तरह के ब्रांड्स आपको यू विल बी एबल टू गेट, दैट्स अ नेशनल मार्केट। ठीक है, ये लोकल मार्केट से ऑब्वियसली काफी बड़ा होता है और लोकल मार्केट से काफी बेहतर होता है। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू द थर्ड मार्केट और द थर्ड काइंड ऑफ मार्केट विच इज एन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट होता है वेयर यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड्स। ठीक है, और इफ ऑल द इंटरनेशनल ब्रांड, तो खैर कहना गलत होगा क्योंकि कहीं भी सारे इंटरनेशनल ब्रांड प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन यू विल बी एबल टू फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड, दैट मार्केट इज नोन एज द इंटरनेशनल मार्केट। नाउ इंटरनेशनल मार्केट का क्या मतलब हो गया? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने फ्लाइट्स बोर्ड की हैं? आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लाइट बोर्ड की है? प्लीज टेल मी, कितने लोगों ने प्लेन से ट्रैवल किया है? अरे सर देखे नहीं आते थे। अच्छा अच्छा, बेटा उड़ता तो देखा ही होगा तुमने आसमान में, Yes, sir. I वो have फ्री bought है। a flight. All right, fine. So if I believe it is not at Lucknow, if you go to any of the international airport, particularly maybe Bangalore, maybe Delhi, maybe Bombay, fine. तो वहां पे जो इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं, पर्टिकुलरली अगर किसी ने इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड की हो, वहां पे जो इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड वेरी बिग शॉप्स, मॉल काइंड ऑफ शॉप्स देयर। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू सी लॉट मेनी फॉरेन ब्रांड्स available there, ठीक है, which are usually not available in your local market or in your national level market। ठीक है, लाइक क्लोथिंग के ब्रांड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांड्स हो सकते हैं, और मतलब लिकर के ब्रांड्स हो सकते हैं, सिगरेट्स के ब्रांड हो सकते हैं, जो आपको लोकल मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, बट यू विल बी एबल टू सी देम देयर। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंटली कई जगहों पे यू वोंट बी फाइंडिंग कस्टम ड्यूटीज, वहां पे कस्टम ड्यूटी भी नहीं होती कई जगहों पे। ठीक है, बिना कस्टम ड्यूटी के आप वहां से प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, लेकिन उस एरिया में यू कैन गो ओनली व्हेन यू आर हैविंग द टिकट ऑफ दैट पर्टिकुलर उस फ्लाइट का जो उस टर्मिनल से जा रही हो। ठीक है, तो ये तो समझने के लिए आई हैव गिवन जस्ट दिस एग्जांपल कि यू विल बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड इन दीज काइंड ऑफ showrooms or in these kind of locations. So international market is basically a place where you'll be able to get most of the international brands that you can purchase as and when you need, right? So on the basis of area, we can classify the market into three categories. The first category is local market, as we have already discussed, the market which is local for you, which is in your locality, which is in your reach, which is close by to your place where you live. Second is the national market. National market is the market where you'll be able to find all those national and national level product and services, right? And international market is a place or is an area, is a market where you will be able to find most of the international brands, right? So this is the categorization of this is the categorization of market on the basis of area. Now coming down to the market on the basis of time, right? On the basis of time, market can be classified into two types. And what are those types? Two types: short period market and long period market. Now on the basis of time, I said we can classify the market into two categories. First is the short period market, second is the long period market. Now what is the short period market? Let us understand the short period market first. Short period market is a market which is particularly for those goods and services which are short lived, yeah, which are having short span of life. Can anybody give me an example of a particular commodity which is having a short span of life? Sir, Milk can and we say bread. the Tibet markets, which usually comes in the period of winter? All right. अभी किसी ने कुछ और बोल रहा था, कोई और कुछ बोल रहा था बीच में? Milk and bread. Example. हाँ, बताओ बेटा, क्या एग्जांपल दे रहे थे आप? दूध और ब्रेड का। हाँ, दूध, ब्रेड, सब्जी। ठीक है,
ये सारा शॉर्ट पीरियड मार्केट में आ जाएगा। तिब्बत मार्केट का जो एग्जांपल दिया वो भी तिब्बत मार्केट का एग्जांपल गलत नहीं है, तिब्बत मार्केट का भी एग्जांपल अपने में सही है। हर वो मार्केट जो शॉर्ट लिव्ड हो, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हो, या उन प्रोडक्ट्स के लिए हो जिनकी डिमांड या जिनकी लाइफ शॉर्ट हो, ठीक है, लाइक मिल्क है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएंगे। ऑल्दो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंडेंस करके रखे जाते हैं, ठीक है, दे मे बी हैविंग 2-4-5 दिन की हो सकता है उनकी लाइफ हो, आइसक्रीम वगैरह की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, बट आई व्हाट आई मीन टू से इज दैट दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर पर्टिकुलरली शॉर्ट लिव्ड आर इन दी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स का जो सर मार्केट होगा वो शॉर्ट पीरियड मार्केट कहलाएगा। हाँ बताओ बेटा। सर जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में हाँ 1-2 मिनट की सेल होती है, हमारा जो कोई होता है प्रोडक्ट 1-2 या 2 मिनट के अंदर पूरा सेल हो जाता है, मोबाइल हो या कुछ हो, तो वो भी आएगा शॉर्ट टर्म मार्केट। बेटा वो शॉर्ट टर्म सेल तो कहना मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट होगा। शॉर्ट टर्म मार्केट उसको इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि अदरवाइज भी वो अगर अवेलेबल है तो शॉर्ट टर्म मार्केट नहीं कहा जाएगा, और अगर अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सेल में ही अवेलेबल है, तो इट मे बी रेफर टू एज शॉर्ट टर्म मार्केट, क्योंकि उस टाइम के बाद वो फिर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। जैसे एमआई की सेल आती है खास तौर से, मेरे ख्याल से अगर मैं सही समझ रहा हूँ जो आप एग्जाम्पल देना चाह रहे हो, एमआई का है या रियलमी का है, कई बार इनकी फ्लैश सेल्स आती हैं, दैट इज व्हाट आर यू आर रेफरिंग टू, इसी टाइप की सेल की बात कर रहे हो आप? यस सर, यस सर। राइट, उस सेंस में सही है बिल्कुल बात ये। प्लस यू माइट हैव सीन ऑन अमेजॉन के सेल आती है प्राइम मेंबर्स के लिए 1 दिन की, देखा है आप लोगों ने कभी? अमेजॉन प्राइम पे 1 दिन की सेल आती है कभी कभी प्राइम मेंबर्स के लिए, खास तौर से आईफोन वगैरह पे या और गैजेट्स वगैरह पे बहुत हेवी डिस्काउंट आता है। जैसे अभी मेरे ख्याल से सितंबर में नवरात्र से पहले आती है सेल वो, ठीक है, दशहरा से पहले सेल आती है वो, और वो सबसे बड़ी सेल होती है, बिग बिलियन डे सेल कहलाती है, कौन सी सेल कहलाती है मुझे नाम इस वक्त आई एम अनेबल टू रिकॉल, ठीक है, तो दैट्स अ शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड मार्केट की अगर हम बात करें, लॉन्ग पीरियड मार्केट में उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात हो रही है जो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते हैं, या जो लॉन्ग टाइम तक सेल के लिए अवेलेबल रहते हैं, या जिनकी लाइफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में तो बतेरे प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके, फैशन है, फर्निशिंग है, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स आपके इसमें आ जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम टाइम की बात करें तो मार्केट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट उन प्रोडक्ट्स का मार्केट है या उन सर्विसेज का मार्केट है जो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल है, उसको हम शॉर्ट पीरियड मार्केट कह देते हैं, और दोज विच आर अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विल बी रेफर टू एज लॉन्ग पीरियड। आई बिलीव ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. Right. Yes, sir. Now coming down to the on the basis of transaction, ठीक है, on the basis of transaction दो तरह के मार्केट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, on the basis of transaction, on the spot market, ठीक है, on the spot market and future market, ठीक है, on the spot market, ठीक है, on the spot market एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। ऑन द स्पॉट मार्केट क्या है? ऑन द स्पॉट मार्केट है, जैसे इसमें एग्जांपल यू कैन सी रिटेल स्टोर, व्हाट इज हैपनिंग टू द रिटेल स्टोर्स, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग टू द रिटेल स्टोर्स, यू आर गोइंग टू द रिटेल स्टोर्स, ठीक है, यू आर गोइंग टू द रिटेल स्टोर्स, यू आर चूजिंग द प्रोडक्ट देयर, ठीक है, एंड आफ्टर चूजिंग द प्रोडक्ट व्हाट यू आर डूइंग, you are paying to that particular retail store owner or cashier of that particular retail store the price of that particular product, and you are taking it with you. So this is what is happening at the रिटेल स्टोर्स। क्या आप रिटेल स्टोर्स पे जाते हो, प्रोडक्ट पसंद करते हो, उस प्रोडक्ट की कीमत देते हो और उस प्रोडक्ट को लेके घर आ जाते हो, ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑन द स्पॉट मार्केट। मतलब ऑन द स्पॉट आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ऑन द स्पॉट आप उस प्रोडक्ट का पेमेंट भी कर रहे हो। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, मतलब प्रोडक्ट भी आपको तुरंत मिल रहा है और उस प्रोडक्ट की कीमत भी आप तुरंत ही दे रहे हो। ये है आपका ऑन द स्पॉट मार्केट। दूसरा है आपका फ्यूचर मार्केट। अब फ्यूचर मार्केट क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द फ्यूचर मार्केट आल्सो। Most of you are purchasing the products from
online retail channels, right? Like Flipkart is there, Myntra is there, Snapdeal is there, okay? Amazon, how can I forget, is there, and Jabong, and lot many websites are there which are doing online retailing. Now, what is happening in the online retailing, or why I am giving this example of online retailing in future market? Simple reason behind this is that you are getting the product in future and you will be paying in future. There are two options which are available in your future market. Either you take a prepaid product, means you pay first and then get the product, or you pay for the product on cash on delivery, right? Normally लोग क्या करते हैं, people like me or people like others who are very fond of online shopping and are purchasing most of the time Amazon certified product or Flipkart certified product, they don't mind paying in advance. आप देखोगे उस पे लिखा होता है Amazon certified कुछ प्रोडक्ट पे, और कुछ पे लिखा होता है Flipkart certified, जिनको आप Flipkart से Amazon से परचेज करते हो, तो उस केस में क्या है, ये कंपनीज उन प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई कर रही हैं कि हाँ ये जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास जेन्युइन प्रोडक्ट ही पहुंचेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में मतलब आप उस प्रोडक्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस कर सकते हो। कई प्रोडक्ट सर्टिफाइड नहीं होते हैं, उन प्रोडक्ट की गारंटी कंपनी नहीं लेती है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ऐसे प्रोडक्ट्स का पेमेंट करने में भी लोग झिझकते नहीं है, ठीक है। और काफी लोगों का टेंडेंसी रहता है प्रोडक्ट चाहे सर्टिफाई हो चाहे सर्टिफाई ना हो, हम तो भाई कैश ऑन डिलीवरी ही करेंगे, अच्छी बात है वो भी, ठीक है। इट इज योर ओन चॉइस एंड इट इज योर ओन लेवल ऑफ कन्वीनियंस एंड कंफर्ट, एंड वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल यू शुड बी डूइंग दैट, ठीक है। तो फ्यूचर मार्केट में व्हाट इज हैपनिंग, you will be getting the product in future and you will be paying for the product in future, ठीक है। so that is the reason it is referred to as future market. तो on the basis of transactions, यहाँ दो तरह के मार्केट की हम लोगों ने बात की। पहला मार्केट कौन सा है, पहला मार्केट है आपका ऑन द स्पॉट मार्केट और दूसरा मार्केट है आपका फ्यूचर मार्केट, ठीक है। बात क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन के बेसिस पे भी हम मार्केट को कैटेगराइज करते हैं। फोर्थ बेसिस जिस पे हम मार्केट को कैटेगराइज करते हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन के बेसिस पे देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट एंड सेकंड इज नॉन रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट में एग्जांपल आप देखिए दिया हुआ है व्हाइट मार्केट का, दूसरा है नॉन रेगुलेटेड मार्केट, इसमें दिया हुआ एग्जांपल ग्रे मार्केट का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, नाउ व्हाट इज रेगुलेशन? व्हाट इज रेगुलेशन? बाय रेगुलेशन आई मींस द रूल्स एंड रेगुलेशंस, those markets which are being established as per the rules provided by the government and selling those products and services which are permitted or which are legally permitted to be sold by the government is known as regulated market or white market, ठीक है। कोई भी ऐसा मार्केट जो सरकार के बनाए हुए नियम या कानून के तहत बनाया गया हो और वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहा हो, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचना लीगल हो, उस मार्केट को हम कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट। इसका एग्जाम्पल है व्हाइट मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट को हम व्हाइट मार्केट भी कहते हैं, एग्जाम्पल नहीं है। व्हाइट मार्केट मतलब वो मार्केट जो सरकार के बनाए गए कायदे कानून के हिसाब से बना है और सरकार द्वारा परमिटेड कायदे कानून के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना परमिटेड है वो बेच रहा है, ठीक है। दूसरा हो जाता है नॉन रेगुलेटेड मार्केट, जिसको हम ग्रे मार्केट भी कहते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन इज ग्रे मार्केट, व्हिच इज आल्सो नोन एज नॉन रेगुलेटेड मार्केट। नाउ व्हाट इज अ ग्रे मार्केट? ग्रे मार्केट इज अ मार्केट व्हिच इज नॉट एस्टैब्लिश्ड strictly according to the provisions or rules and regulations as provided by the government. ग्रे मार्केट वो मार्केट